Hello children, welcome back to Simplified Maths. In today's particular lecture, dear children, we are continuing with exercise 7. Okay, in the last lecture, what we have seen? We have seen, I think, started with sum number 6 of exercise 7 and we have discussed up to 14. Okay, 14 or 15 maybe, right? 15 sum is quite easy, so I may not be taken in discussion. Now today we are taking means continuing with sum number 16 onwards. Okay, again all sums are not going to discuss. Okay, whatever I feel to discuss we will definitely discuss. Some problems I will give the hint, like 16 sum. If you see, e raised to, it is e raised to 3 log x, base not given, so base e, into bracket x raised to 4 plus 1, x raised to 4 plus 1 raised to minus 1. Okay, now क्या करेंगे? First of all, you know these 3 will go to the power, that will be x cube. So e raised to log of x cube will be x cube if you recall the property of logarithm. And ये क्या हो गया? Denominator में जाएगा because power is minus 1. So it will be 1 upon x raised to 4 plus 1. Correct? So now the sum is converted into this form. So क्या है actually ये? It is x cube upon x raised to 4 plus 1 dx. ठीक है? Right. Now further thing I am keeping for you. अब इसमें से आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना होगा. एज्यूम करो कि आप x रेज टू 4 इज इक्वल टू t कर दो. ओके, एंड देन यू डू इन द होमवर्क. ठीक है, इसका क्या करेंगे? 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt करके आप चेक करोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल, एंड देन ओनली 2-3 स्टेप्स इज लेफ्ट देयर. सो यू जस्ट फिनिश इट इन द होमवर्क. I am not doing it here, so just I have given you the, it may not be the hint, little bit more than the hint. Okay, now I go for sum number 18. 18 sum is important for the board exam. Okay, maybe asked in 2, not even 2, maybe 3 marks. Just see what the sum given is. ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सम है. लुक एट द सम इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 352. ओके, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा. Okay, now you should know that alpha is a constant, right? Now the important step is the beginning. सबसे पहला जो स्टेप है ना, आप उसको ध्यान से देखना. और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो दोनों both the ways it is important. Now see, numerator is 1, right? Now what we are doing is I am putting the whole under root, and then just see what we are doing now. It will be sin x in the numerator and in the denominator sin raised to 4x. So just tell me what I have done. Divide and multiply by sin x, isn't it? But in the under root. If the numerator was 1, so I can take under root, the whole under root, because under root of 1 is also 1. Okay, so divide and multiply by sin x in the under root and into this thing as it is, that is sin of x plus alpha whole dx. So this step, ये जो beginning वाला step है, this is a very important step. ये आपको दिमाग में आएगा नहीं,
और अगर ये स्टेप नहीं आए ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गो फर्दर टू सॉल्व इट. ठीक है. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर, एंड दैट इज substitution. Okay, but before we go for the substitution, here there is a sin raised to 4x. Just take sin raised to 4x outside square root. आउटसाइड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ओके, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यू कैन टेक इट लेटर ऑल्सो बट मैं अभी से ले रहा हूँ, 1 upon साइन स्क्वायर एक्स. आई एम टेकिंग आउट ऑफ द रूट ओनली. अभी अंडर रूट में क्या बचेगा, न्यूमरेटर इज साइन एक्स एंड अपॉन, नाउ दिस साइन रेज टू 4x इज टेकन आउट, so only this thing, that is sine of x plus alpha. ठीक है, dx. Clear? Right. Now again very important step comes, that is the substitution. ठीक है. अब substitution क्या लेना है आप वो ध्यान से देखना. ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है. सपोज लेट, ये जो है ना अंडर रूट क्वान्टिटी, वो अंडर रूट क्वान्टिटी को हमको एज्यूम करना होगा. यू कैन टेक इट, बट उसका रेसिप्रोकल मतलब थोड़ा गड़बड़ वाला है, ध्यान से देखना. ओके, एंड वाई इट इज सो, उसका जब डेरिवेटिव करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू टी. ये हमारा सब्सटीट्यूशन है. और इफ यू टेक दिस लाइक दिस ओनली, देन यू टू टेक 1 अपॉन टी. बी केयरफुल. तो 1 अपॉन टी लेना होगा, लेकिन इससे कंफ्यूजन है. सो बेटर टू टेक साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू टी. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग दिस एज अ सब्सटीट्यूशन, बिकॉज नाउ इफ यू टेक इट्स डेरिवेटिव बोथ साइड. ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना. तो डिफ्रेंशिएशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, डिवीजन रूल. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ डिवीजन रूल. यू नो, ऑल ऑफ यू नो द डिवीजन रूल. ओके, एन इज इक्वल टू डी टी राइट हैंड साइड. सो डिवीजन रूल के हिसाब से यू नो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. सो दैट आई विल राइट इन द नेक्स्ट पेज. देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स. साइन एक्स एज इट इज into derivative of numerator. Numerator क्या है, sin of x plus alpha. So its derivative will be cos of x plus alpha. So denominator into derivative of numerator minus numerator. Numerator is sin of x plus alpha into derivative of denominator sin x का cos x, and whole upon denominators the square, that is denominator is sin x, no, so it will be sin square x dx is equal to dt. ओके, राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया सब्सटीट्यूशन वाला. द रीजन इज, सी क्या हो रहा है नाउ इन द लुक इन द न्यूमरेटर. Can you recall any addition formula, trigonometry? Sin x into cos x plus alpha minus cos x into sin x plus alpha. So it's something like sin x cos y minus cos x sin y. तो क्या हो गया, sin of x minus y है कि नहीं एडिशन फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंगली इसका क्या होगा, sin of, ओके, यू कैन टेक इट एज से x is, this is x, and say x plus alpha is y, so it is sin of x minus y. So x minus x plus alpha. ओके, इसको y समझ लो, समझो कि जस्ट टेक इट दिस एज y. सो x माइनस y, साइन ऑफ x माइनस y. सो साइन x cos y माइनस cos x sin y हो गया. ओके, देखो इसका क्या फायदा हुआ, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, राइट.
Now see from here, x cut. So sine of minus alpha only remain, no? Sine of minus alpha upon sine square x dx is equal to dt. ठीक है. Now sine is odd function, correct? You should know that. So it will be minus sine alpha. ये क्या हो जाएगा? Minus sine alpha, correct? So that minus sine alpha upon sine square x dx is equal to dt. Okay, all right. Now just see, look at the sum. I'm turning the page again and see this term. यहाँ पे देखो 1 upon sin square x है. Can you see that? 1 upon sin square x dx is there. 1 upon sin square x dx. तो यहाँ से अभी आप 1 upon sin square x dx को सब्जेक्ट बना दो. ठीक है. So 1 upon sin square x dx is equal to, now this minus sin alpha take on that side. So it is minus 1 upon sin alpha into dt. Okay friends. तो ये पूरा dt हो, ये वाला हो जाएगा in the given sum. And so thus हमारा जो I है, I is equal to integration, okay, that thing is all minus 1 upon sin alpha dt. और अंडर रूट में जो उसको हमने, इसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, इसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल को हमने t लिया हुआ है, isn't it? So this is what, this will be 1 upon t, isn't it? Okay, so root t in fact. So it will be 1 upon root t. Hope you understand this thing, है ना? Okay, and into ये पूरा, ये वाला, so it is minus 1 upon sin alpha dt. Okay, now can you see how it becomes very simple now? ये minus 1 upon sin alpha तो take out constant. So minus 1 upon sin alpha out. Now root t in the denominator, you can take it as minus half in the numerator dt. Finish. Now simply formula. So what formula it is now? T raised to n. So t raised to n plus 1 upon n plus 1. So t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1. Okay. So it will be minus 1 upon sin alpha into, ये क्या हो जाएगा, t raised to half upon half plus c. Okay. And now t also you have to replace. ये 1 upon 2 ऊपर जाएगा, 2 हो जाएगा. So that will be minus 2 upon sin alpha, and t raised to half mean it is under root of t, correct? So under root of, now what is t? T substitution जो भी हमारा है ना ओरिजिनल वो रख दो. So it is sin of x plus alpha upon sin x. So ये हो गया फाइनल आंसर हमारा. ठीक है, राइट? सो इट इज़ क्वाइट अ टिपिकल टाइप ऑफ सम. तो ये इसलिए डियर चिल्ड्रन बहुत ही इम्पोर्टेंट सम में इसको कंसीडर करना है. ओके, अभी इसके बाद आएगा सम नंबर 19 विच इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट देन सम नंबर 18. ओके, और वो काफ़ी लंबा भी होता है. सो इट विल बी आस्क्ड नॉट लेस देन 4 मार्क्स. so 4 मार्क्स से ज़्यादा वाला तो कोई है ही नहीं हमारे पास पेपर स्टाइल में. ओके, सो इसका मतलब कि ये अगर आएगा तो 4 मार्कर में ही आएगा. ओके, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस
cos इनवर्स रूट एक्स dx. ठीक है, एंड देर इज अ कंडीशन गिवन. ओके, वो कंडीशन का इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, बट वो कंडीशन देने का एक रीज़न है. x बिलोंग्स टू 0 to 1 ऐसे दिया हुआ है. सो दिस इज गिवन बिकॉज इफ यू नो दैट चैप्टर inverse trigonometric function, I think chapter 2. Okay, so in that, if this condition is there, then there is a result that sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. याद है? तो x के बदले रूट x है, तो दिस विल बी ऑल्सो डिनोमिनेटर ऑल्सो पाई बाय 2 अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला. बिकॉज दिस इज गिवन. अगर ये नहीं दिया होता है तो गड़बड़, इसकी वजह से ये हो रहा है. एंड द सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इवन इन द न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर में कैसे यूज़ करोगे वो आप देख लेना. ये तो थोड़ा लंबा सा मैं इसलिए मैं एक स्टेप इधर भी लिख रहा हूँ. सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. नाउ सी, इट इज साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स जो है ना, दैट कैन बी यूजिंग द फॉर्मूला अभी अभी जो मैंने बोला ना ओरली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2. सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट? इट विल बी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट यहाँ पर एक्स नहीं है, क्या है? रूट एक्स है. एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज पाई बाय 2 ओनली. ओके, dx. ठीक है, सो ये रीजनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में कि हाँ वी नो इट, ये चैप्टर 2 में आ गया है. नाउ व्हाट? नाउ डिनोमिनेटर तो सिंपल हो गया. पाई बाय 2 विल कम आउट एज 2 बाय पाई. गॉन. ओपन दिस ब्रैकेट. इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू नो माइनस माइनस प्लस. सो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स. ठीक है, और माइनस पाई बाय 2 जो है, ठीक है, वो माइनस पाई बाय 2 को भी वो बाद में करेंगे, अभी उसको माइनस पाई बाय 2 ही रखता हूँ मैं. सो इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बाय पाई आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 dx. ठीक है, नाउ यू फील दैट एक थोड़ा सा इजी हो गया है. अब इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट दे दो, सेपरेट अप्लाई, एंड 2 बाय पाई ऑल्सो टेक इनसाइड. नाउ पहले से भी ले सकते थे लेकिन मैं अभी ले रहा हूँ. सो नाउ इट विल बी 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx minus integration of, now this 2 upon pi will go here, 2 upon pi into pi upon 2, so सब कट हो जाएगा तो only 1 है कि नहीं? Isn't it clear this dear children? अब क्या करना है कि ये हमारा है I, this is our I, correct? Now what you have to do is इसको दे देंगे हम नंबर 1. Just say this is result number 1. Okay, now in 1 आप ये जो है ना साइन इनवर्स रूट एक्स, उसको आप अलग से इंटीग्रेट करोगे बिकॉज उसका सीधा नहीं हो सकता. उसको अलग से इंटीग्रेट करके देन वॉट एवर द आंसर यू गेट दैट यू गिव अ नंबर 2 एंड देन यू हैव टू पुट इट इन 1. दिस इज द मेथड. ओके, राइट? एक्सप्लेन करने में ईजी लगता है लेकिन व्हेन यू डू इट it is a little long procedure. Okay, तो is equal to, इसको एक काम ये भी करो, चलो इसको I1 नाम दे देता हूँ मैं. 4 अपॉन पाई I1, जस्ट से दिस इज I1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. इसका वैसे लिख सकते हैं लेकिन अगर लिखेंगे तो फिर प्लस सी करना पड़ेगा, सो आई एम नॉट राइटिंग. और जस्ट से दिस इज नंबर 1. इसको लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इसको I1 सपोज करके ले लिया. कॉल दिस नंबर 1. नाउ क्या करेंगे? I1 को अलग से ले लेंगे. सो I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स
dx. ओके, बराबर. अब इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्टली देर आर टू मेथड्स. हियर यू कैन डायरेक्टली टेक इनटू वन, और इनटू वन करके you can apply that UV formula. What is UV formula? Integration by parts. ओके, राइट. तो वो भी कर सकते हो. अगर वो नहीं करना है तो इसमें भी एक बार सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो कि भाई थोड़ा इजी, अगर ये रूट में से निकल जाना है तो सपोज यू टेक x इक्वल टू टी स्क्वेयर. ओके, वो इंटू वन करके कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू ट्राई, नो प्रॉब्लम. अगर x इक्वल टू टी स्क्वेयर ले लिया तो व्हाट इज डी एक्स इक्वल टू टी डी टी. ठीक है. एंड सो आई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स. सो रूट एक्स विल बी टी, नो, साइन इनवर्स टी इंटू डी एक्स क्या है, टू टी डी टी. करेक्ट. नाउ टू आउट, सो आई वन इज इक्वल टू टू आउट t sin inverse t dt. Sorry. Now here you have to take uv. अगर डायरेक्टली यहाँ से uv लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ हियर यू हैव टू टेक कंपल्सरी, अब तो uv लेना ही है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला लिएट, LIATE, है ना. ओके, सो उसके हिसाब से क्या होगा, इसको u लेना पड़ेगा बिकॉज LIATE ये हमारा एल्जीब्रिक में आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा v. ठीक है ना. ये ध्यान में रखना, ऑर्डर को गड़बड़ नहीं हो जाए. सो इसलिए एक्चुअल में इसको मैं उल्टा लिख ही देता हूँ तो हमारी मिस्टेक ना हो. इट विल बी साइन इनवर्स टी इंटू टी रखो. ठीक है. नाउ यूवी फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू यूवी फॉर्मूला, बी केयरफुल, देयर इज ए टू आउटसाइड. ओके, सो टू, देन आई पुट अ ब्रैकेट because of 2 only. Now see, sin inverse t as it is, sin inverse t into इंटीग्रेशन ऑफ v dx. v का याद है ना सब, होप यू रिमेंबर इट. सो t का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी टी स्क्वेयर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी टी, मतलब साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन. सो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर. ओके, दिस इज डी यू बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब फिर से वही टी स्क्वेयर बाई टू. ये तो याद है ना, यहाँ पे जो होता है वहीं पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना होता है. हाँ, होल डी टी, ब्रैकेट ओवर होल डी टी एंड कर्ली ब्रैकेट ओवर. नाउ दिस कर्ली ब्रैकेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टू. अब ये मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो यहाँ से टू कट जाएगा. सो इज इक्वल टू, ओके, यू हैव टी स्क्वेयर साइन इनवर्स टी माइनस दिस टू विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड डी टी. ठीक है ना. होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, नाउ ये तो हो गया. अभी इसमें टी रिप्लेस करना बाकी है, वो बाद में होगा. अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन सोचो व्हाट टू डू. सो देयर टी स्क्वेयर साइन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को देख के मैं सोच रहा हूँ कि लेट मी डू समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस टी स्क्वेयर. जस्ट सी व्हाट आई डिड, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1.
ठीक है, राइट। और देखो माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर भी हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना, ओके, राइट। नाउ इज इक्वल टू, आई जस्ट टर्न द पेज बिकॉज फिर से वो इंटीग्रेशन आएगा। सो अभी यहाँ पे है स्पेस है, बट आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। So I1 is equal to, be careful, it is I1 going on, t square sin इनवर्स t, और फिर यहाँ से मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी, और फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, होप यू कैन सी दिस, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अपॉन में अंडर रूट में क्या होने वाला है, इट इज़ द सेम टर्म, राइट। सो अंडर रूट विल गेट कैंसल, सो अंडर रूट विल रिमेन इन द न्यूमरेटर, ओके, अंडर रूट विल रिमेन इन द न्यूमरेटर, और आगे माइनस है, ये माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी, ठीक है, राइट। सो देखो कहाँ से कहाँ लंबा हो रहा है कि नहीं। अब ये पहले टर्म तो एज इट इज जो है वो है ही टी स्क्वेयर साइन इनवर्स टी, दिस इज ऑल्सो नोन फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सो इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, sin inverse x upon a. So accordingly it will be sin inverse t upon 1. So it will be simply t. और यहाँ पे आ गई ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है लास्ट में, सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी एक्स स्क्वायर। सो वो फॉर्मूला है, इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग वन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, प्लस यू नो दैट फॉर्मूला, यू कैन रिकॉल इट, एक्स बाई टू इंटू सम प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 है, एक्स के जगह पे टी है, सो इट विल बी टी बाई टू इंटू सम, so sum is under root of 1 minus t square plus, okay, plus a square by 2, so a square is 1 only, so 1 by 2 into sine inverse, okay, and x upon a, so that is t only, ठीक है ना, राइट। अब देखो सब इंटीग्रेशन हो गया ना, तो नाउ यू पुट प्लस सी, ठीक है, राइट। Now what's your observation? ये यहाँ से ध्यान से देखो आप कि ये हाफ साइन इनवर्स टी और माइनस साइन इनवर्स टी, तो इन दोनों का तो आप एडिशन कर सकते हो ना, हाफ माइनस, सो इट विल बी माइनस हाफ, इजंट इट, प्लस हाफ माइनस 1, प्लस हाफ माइनस 1, सो माइनस हाफ आएगा ना, ओके। सो इज इक्वल टू टी स्क्वेयर साइन इनवर्स टी माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, ओके, फिर ये प्लस टी बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर और प्लस सी, ओके, ठीक है। अब हर जगह पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे भी एक्चुअली मैं ना C1 कर देता हूँ, पता नहीं है ये C1 क्यों लिख रहा हूँ, C1 और C डैश, क्योंकि ये तो I1 चल रहा है। अभी I1 को आप वो रिजल्ट नंबर 1 में रिप्लेस करोगे तो वहाँ पे फिर से कांस्टेंट आएगा, फिर वो टोटल एडिशन मिला के उसको हम C लिखेंगे, ठीक है ना। अब टी स्क्वेयर इज सब्सटीट्यूटेड, x इक्वल टू टी स्क्वेयर लिखा हुआ है हमने, राइट, तो इट विल बी टी स्क्वेयर विल बी व्हाट, x,
साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस टी बाई टू, टी विल बी अगेन रूट एक्स, ओके, सो रूट एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वेयर, सो वन माइनस एक्स, ओके, और प्लस C1, ये हमारा पूरा I1 हो गया। इसको मैं दे दूंगा नंबर 2, ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। नाउ पुट रिजल्ट नंबर 2, ओके, इन रिजल्ट 1, ठीक है। तो रिजल्ट 1 जो है ना, उसमें हमको ये पूरा रिप्लेस करना होगा। तो अभी दैट इज I इज इक्वल टू 4/पाई, ये रिजल्ट 1 है, पीछे वो 4/पाई I1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है। सो 4/पाई, फिर वहाँ पे एक मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, वो ब्रैकेट में आप क्या करोगे, ये रिजल्ट पूरा यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सो माइनस 1 का x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस C2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे C1 आएगा, फिर C2 आएगा, सो अल्टीमेटली C1 प्लस C2 करके फाइनली आप उसको C करके जो भी आएगा फिर दैट विल बी योर आंसर। सो आगे जो भी एक या दो स्टेप है, यू जस्ट फिनिश इट इन द होमवर्क, ओके, जस्ट फिनिश इट, और एक दो स्टेप ही है, ठीक है ना। बाकी मैंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है कि आपको नहीं आए। हाँ, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। सो सी बच्चों, ये कितना लेंदी सम हो गया 4 मार्क्स में, लेकिन ये पूछते हैं रेगुलरली, ओके, सो ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो नाउ वी स्टॉप टुडे एट हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी मोर देन 32 minutes, okay. So next lecture we will continue with the same exercise again. Till then, goodbye, have a nice day.